Okay, so see the question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degrees. So, and AB is equal to AC. This is the right angled at A, in which AB is equal to AC. In which AB is equal to AC. Now we have to find out angle B and angle C. ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है. जस्ट चेक, इसके सॉल्यूशन में देखिए बेटा, इसको जनरल कर लो आप. देखो AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो क्या मिल जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. क्लियर? एंड एंगल A कितने का है? 90 डिग्री का. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. उसके बाद आपको ABC B और C की वैल्यू मिल जाएगी. इज इट ओके? तो लिखो इन ट्रायंगल ABC, AB or AC is equal to AB. So this implies angle B is equal to angle C. Reason is these angles opposite to the equal sides. Is it okay? Now angle B is equal to angle C हो गया है बेटा. अब इस ट्रायंगल ABC में लिखो also angle A plus angle B plus angle C, this is equal to 180 degree. Triangle ABC पर angle sum property, angle sum property of triangle, angle sum property of triangle. अब देखो बेटा यहाँ पर angle A कितने का है? It is the 90 degree. So it is the 90 degree plus angle B plus angle C. तो यहाँ पर देखो from angle B is equal to क्या है बेटा? angle C. तो यहां पर लिख सकते हो एंगल C B के प्लेस पर प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिंस B इज इक्वल टू C है, so it is the 90 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन बेटे सॉल्व करो. so it is the 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90. so 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. so एंगल C इज इक्वल टू 90 अपॉन 2. so this is the 45. तो एंगल C इज इक्वल टू 45. ठीक है. नाउ अब चेक करें. अब हमें C तो मिल गया 45 डिग्री का. फर्स्ट में क्या दिया? C इज इक्वल टू B. नाउ एंगल C इज इक्वल टू क्या है? नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम 1. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल C कितने का आपने निकाल दिया? 45 डिग्री का. तो एंगल B इज इक्वल टू 45. Therefore, angle A is equal to angle C. Sorry, angle B is equal to angle C is equal to 90 degree each. It is the result. ध्यान रखना, इसको एज ए प्रॉपर्टी भी आप याद कर सकते हो. कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आइसोसेलस, बिकॉज AC is equal to AB दिया है. इन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल अदर 2 angles are equal other than 90 degree. जो एंगल होंगे that 2 angles are equal. Is it okay? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree. इस प्रॉपर्टी को हम कई बार यूज किए हैं, लेकिन आज हम प्रूफ करेंगे. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC. Equilateral triangle means all 3 sides are equal. Here AB is equal to BC is equal to AC. All 3 sides are equal. Now, number 1, we have to show that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. To prove कर देते हैं. It is the given. This is the to prove. अब इसका चलो प्रूफ करें बेटा. थ्योरम बेस पे करना इस क्वेश्चन को. देखिए सिंस AB इज इक्वल इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और अगर AB इज इक्वल टू AC है तो गिवन. सो एंगल C इज इक्वल टू मिल जाएगा एंगल B.
angles opposite to the equal sides, angles opposite to the equal sides. Also इसी ट्रायंगल पर AB is equal to BC, AB is equal to BC. अगर AB is equal to BC लोगे तो BC का अपोजिट एंगल मिल गया एंगल A, एंड AB का अपोजिट एंगल मिल गया C. एंगल A is equal to C, again same region, that is from 2 and 3. So from 2 and 3 क्या मिल गया, एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C. एंगल B is equal to एंगल C, एंगल C is equal to एंगल A, इसका मतलब एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस पर. अब आगे चलो. नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. It is the angle sum property of the triangle. अब ये तीनों इक्वल है बेटे. एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C. इसको हम लिख सकते हैं एंगल A, B को भी लिख सकते हो एंगल A, C को भी लिख सकते हो एंगल A. It is the 180 degree. So means what? 3 times of angle A is equal to 180 degree. So angle A is equal to कितना मिल गया? 180 upon 3. So it is the 60 degree. Therefore angle A is equal to 60 degree. Hence from fourth में क्या है? A is equal to B is equal to C. तो अगर A 60 का है तो B कितने का होगा? 60 डिग्री का. C कितने का होगा? 60 डिग्री का. तो वही लिख दो. एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री. Hence proved. Hence proved. बेटा ध्यान रखना, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा. क्लियर? इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर किसी ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री के हैं तो ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. इज इट ओके? समझ में आ गया है? गॉड ब्लेस.